Hey dude, thanks for visiting. Hopefully you are doing well. So in this video we are going to solve the questions of linear programming, that is LPP of GATE 2023 paper. Okay, mathematics paper. So you all know that the LPP is very weightage topic for the GATE exam. लगभग हर एक ईयर में 5 to 9 to 10 मार्क्स कम्स फ्रॉम LPP. ओके, तो देखो 2022 में जो क्वेश्चन आया था, आई थिंक 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था गेट 2022 में फ्रॉम LPP. ठीक है, एंड इन दिस ईयर 2023 देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड द वेटेज इज, that is the marks is 5. Okay, so 5 marks for GATE point of view is very huge marks. Okay, because here the qualifying marks is only 25% approximately. Okay, so 5 marks means 5%, 5 marks mean 20% of qualifying marks. Okay, so you can imagine that this 5 marks is very important. So let's start to solve the questions, and before starting I am requesting you to all those who are new in my channel, please give a like to this video, share with your friends, and consider subscribing to my channel. Okay, so first question. Question number 25. It says that consider following linear programming problem: minimize 3x1 plus 4x2 subject to x1 minus x2 less equal to 1 and x1 plus x2 greater equal to 3. So this is a very basic problem. We can easily solve it by using the graphical method. So first, this is the first straight line, 1 0 and 0 minus 1, the first straight line. Okay, and the solution region is on this side, and x1 plus x2 greater equal to 3. So that is, this is suppose 3 point and this is 3 0 and 0 3 point. So this is the, you can say the 3 0 point, and this is the 0 3 point. So this is the second straight line. Okay, and the region is on this side. So the feasible region is on the this side. So this is the feasible region. Now the point, that is the extreme points are this point and this point. Now we know that this point is 0 3 and this point is the intersection of these 2 points. So intersection of these 2 point means if we add 2, then we get x1 minus x2 is equal to 1, x1 plus x2 this equal to 3. So this gives 2x1 equal to 4, that is x1 equal to 2. Okay, x1 equal to 2. So x2 का वैल्यू क्या होगा? x2 का वैल्यू होगा 3 minus 2, this is equal to 1. So this is the point 1 and 2. Okay, sorry, 2 and 1, not 1 2. This is 2 and 1 point. Okay, now if we calculate the z, so z equal to क्या है? The optimization function is equal to 3x1 plus 4x2 at the point 0 3. The value of z equal to 12, and at the point 1 2, sorry 2 1, at the point 2 1, the value of z should be 6 plus 4, this is equal to 10. Okay, sorry 10. So the minimum value of from these two is 10. So this is the correct answer of this problem. Therefore the optimal value of the problem P is 10. Okay, so you got 1 marks if you can solve this problem, and this is a very less time you take to solve this problem. Okay, so this is very easy. Now the next problem is question number 57. This is a 2 marks problem, and this comes from the transposition problem. Okay, so the question says transportation problem. Consider the transportation problem between the 4 sources and 5 sources and 4 destination as the given in the cost below. So cost matrix आपको given है. यहाँ पर बोला है कि CN and CN with the total cost of the initial basic feasible solution obtained from the northwest corner rule and the least square method. देन CN माइनस CL. सो आपको यहाँ पर क्या करना है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड से, दोनों मेथड से ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंड देन यहाँ पर इस जो दोनों का जो मिनिमम कॉस्ट है उसका डिफरेंस मतलब फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट यहाँ पर NR मेथड लगाते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. ठीक है, तो देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या क्या है? यहाँ पर है 20 10 50 30 40, एंड यहाँ पर है 60 10 20 एंड 60. ठीक है, तो देखो फर्स्ट इसको करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से. ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का एलोकेशन होगा, एंड यहाँ पर होगा मिनिमम 60 एंड 20 का वैल्यू, दिस इज 20. ठीक है, सो दिस गॉट कैंसिल एंड दिस ईयर 40. नाउ फ्रॉम हियर नेक्स्ट एलोकेशन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या एलोकेशन होगा? 10 एंड 40 का मिनिमम जो होगा यहाँ पर होगा 10 एलोकेशन. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होगा एलोकेशन, क्योंकि ये पूरा का पूरा गया, यहाँ पर होगा एलोकेशन 50 एंड 30 का जो मिनिमम है वो है 30 का एलोकेशन यहाँ पर हुआ, एंड यहाँ पर रहेगा 50, तो 20 रहेगा. ठीक है, 30 पूरा का पूरा गया. नेक्स्ट एलोकेशन होगा यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम ऑफ 20 एंड दिस 10. ठीक है,
तो मिनिमम एंड 20 10 का है 10, तो यहाँ पर ये पूरा के पूरा गया एंड यहाँ पर रह गया 10, ठीक है। देन नेक्स्ट एलोकेशन क्या पर होगा, यहाँ पर होगा 10 एंड 20 का मिनिमम जो है 10, तो ये पूरा के पूरा गया 10 एंड यहाँ पर रह गया 10, ठीक है। नेक्स्ट एलोकेशन होगा यहाँ पर होगा 10 एंड 30 का मिनिमम, सो 10 यहाँ पर हो गया, ये तो चला गया, यहाँ पर रह गया 20, सो यहाँ पर हो गया 20 एंड ये गया, तो यहाँ पर रह गया आपका पास 40, तो यहाँ पर 40 मतलब बैलेंस होकर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दिस केस यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट क्या होगा, दैट इज CN यहाँ पर कॉस्ट है, तो ये दोनों का मल्टीपल होगा, सो 20 इंटू 13 260, देन 260 के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस 100 प्लस ये दोनों मतलब 90 प्लस ये वाला 190 प्लस ये वाला 50 प्लस ये वाला 70 प्लस ये वाला 280 प्लस ये वाला 300, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट फॉर द CN। सो ये हो जाएगा 360 देन 450 640 690, देन यहाँ पर हो जाएगा 690 एंड 70 760 एंड 760, तो 10 थर्ड 60 एंड 280, तो ये हो जाएगा 1340 टोटल कॉस्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पर आते लिस्ट कॉस्ट मेथड, तो यहाँ पर टोटल मैट्रिक्स में लिस्ट कॉस्ट जो है वो है 0, सो यहाँ पर होगा फर्स्ट एलोकेशन, जस्ट मिनट मैं डिमांड एंड सप्लाई को एक बार लिख लूँ, 50 30 40 एंड यहाँ पर 60 10 20 60, ठीक है। नाउ यहाँ पर एलोकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या एलोकेशन होगा, फर्स्ट जो है 0, यहाँ पर एलोकेशन होगा 10, ठीक है, तो ये पूरा के पूरा आपके पास गया, ठीक है, तो 10 एंड यहाँ पर रह गया 30, ठीक है। नेक्स्ट जो सेल मिनिमम है, सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो है ये वाला, तो यहाँ पर होगा क्या मिनिमम ऑफ 20 एंड 30 का मिनिमम जो है वो होगा 20, तो ये पूरा का पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर रह गया 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, नेक्स्ट जो मिनिमम कॉस्ट है वो है ये 3 वाला पोजीशन में, ठीक है, तो ये 3 वाला पोजीशन में आपके पास जो होगा वो होगा 50 एंड 60 का मिनिमम होगा यहाँ पर 50, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा के पूरा गया 50, यहाँ पर रह गया 10, ठीक है। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट जो है ये है 4, तो यहाँ पर होगा 30 एंड 10 का मिनिमम जो है 10, तो ये पूरा के पूरा चला गया, कवर हो गया, यहाँ पर रह गया आपके पास 20, ठीक है, 50 तो चला गया 10 20, ओके। नाउ नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट जो है वो है यहाँ पर 7 है, आप देख सकते हो आई थिंक या 7, तो 7 यहाँ पर होगा 60 एंड 10 का मिनिमम जो होगा वो होगा आपके पास 10, ठीक है, तो यहाँ पर रह गया 50 एंड ये तो कवर हो गया। देन उसके पास 9 में होगा यहाँ पर नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट जो है 20 एंड 50 का मिनिमम यहाँ पर होगा 20, ये गया एंड ये आपके पास रह गया 30, ठीक है। देन यहाँ पर 15 में होगा, 15 में होगा 30 एंड 20 का मिनिमम होगा 20, तो ये गया, यहाँ पर रह गया 10 एंड यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एलोकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ कॉस्ट फाइंड करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट मीन्स यहाँ पर CL होगा लिस्ट स्क्वायर मेथड में, तो हो जाएगा 180 फर्स्ट, देन होगा यहाँ पर प्लस 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 300, देन यहाँ पर हो जाएगा 70, देन यहाँ पर हो जाएगा 20, देन ये तो 0, ये हो जाएगा 10 4 40 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 150, तो ये आपके पास पूरा कॉस्ट आ गया। तो 300 200 500 एंड 500 एंड 180 हो गया आपके पास 680 एंड 20 700 850 एंड 850 890 960, तो टोटल हो जाएगा 960, ठीक है। तो जो CN माइनस CL इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, CN माइनस CL इसका वैल्यू आ जाएगा 1340 माइनस 960 इज इक्वल टू 380, तो यहाँ पर हो जाएगा 380, दैट इज 380 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी एक 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था जिसका आंसर होगा 380, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर कहाँ गया, ये तो था, नेक्स्ट वाला कहाँ गया, ये वाला। देखो ये 65 नंबर प्रॉब्लम है। तो 65 प्रॉब्लम क्या बोला है, यहाँ पर प्रॉब्लम जो बोला है वो है कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम P इज इक्वल टू दिस वन। सो देखो यहाँ पर बोला है मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस वन।
तो देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल है एंड 3 आपके पास इक्वेशंस है, मतलब इन इक्वेशंस है, ठीक है। तो ये आप एक काम कर सकते हो कि सिंप्लेक्स अप्लाई कर सकते हो, बट सिंप्लेक्स बहुत मतलब एक जो मेथड है बहुत बड़ा है, आप सभी ने जानते हो। एंड इसका डुअल में आप करोगे तब भी इसमें 3 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन ही आएगा, तो डुअल लेके भी आपको सिंप्लेक्स ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर जो अप्लाई करूँगा वो है जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर आता है जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 बेसिक वेरिएबल है, ऑल आर ग्रेटर इक्वल टू 0। सो इफ वी चूज फर्स्ट, देखो x3 इक्वल टू चूज करते हैं, ठीक है, 0। तो ये एक नॉन बेसिक वेरिएबल हो गया। नाउ x3 इक्वल टू 0 हो गया, तो इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो एक बार देख लो आप क्या होगा। देखो ये जो सेकेंड वाला इनइक्वेशन से मतलब इनइक्वालिटी वो क्या हो जाएगा, x1 लेस इक्वल टू 48, ठीक है। तो इसको छोड़ दो एंड ये दोनों को सॉल्व करते हैं। देन तो क्या आ जाएगा, देखो x1 प्लस 2x2 लेस इक्वल टू 44 एंड क्या आएगा x1 प्लस 4x2 दिस इज लेस इक्वल टू 52। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि x1 लेस इक्वल टू 48 होगा तो वो सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ये एक वेरी इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 एंड 022 एंड 40। तो ऐसा होगा फर्स्ट वाला इक्वेशन। एंड यहाँ पर होगा 52, तो यहाँ लेते हैं 52 एंड 13, ठीक है। तो ऐसे सपोज हो जाएगा इसका आपके पास सोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है एंड ये जो सोल्यूशन जो रीजियन होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन का था, ये 44 0 पॉइंट एंड ये पॉइंट क्या आएगा, देखो इससे आपके पास मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2x2 दिस इक्वल टू -8। तो x2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4। तो x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 मतलब आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा 28,4, ठीक है। 28,4 आई थिंक ये हो जाएगा आपके पास 28,4। तो ये हो जाएगा आपके पास सोल्यूशन, ठीक है। 28,4। नाउ ये जो मैक्सिमम ऑफ x है, तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या आया आपके पास, x1 इक्वल टू आया 28, x2 इक्वल टू आया 4 एंड x3 जो चूज करे हैं वो है 0। तो इसके रिगार्डिंग जो z का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आप एक बार देख लो। सो 84 आएगा यहाँ पर, इससे पुट करेंगे तो क्या आएगा 84 प्लस 8 जो आएगा 92 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नाउ x3 को नॉन बेसिक लिया, देन x2 को एक बार नॉन बेसिक ले लो, ठीक है। तो x2 इक्वल टू 0 चूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो x2 इक्वल टू 0 चूज करेंगे तो यहाँ से एक बार देख लो क्या क्या प्रोसीड्योर आपके पास आएगा, x1 प्लस x3 लेस इक्वल टू 44 आएगा एंड यहाँ पर जो आएगा x1 प्लस 2x3 ये लेस इक्वल टू 48 आएगा एंड x3 को 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ पर x1 लेस इक्वल टू 52 आएगा, x1 लेस इक्वल टू 52। एंड यहाँ पर आप एक चीज देख लो कि x1 का वैल्यू 48 से लेस देन जब x3 चूज किए थे तब आए थे एंड यहाँ पर जो आंसर आया वो भी यहाँ पर 28 आया, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। x1 लेस इक्वल टू 48, यहाँ पर x1 का वैल्यू 28 है, मतलब सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। एंड यहाँ पर मैक्सिमम आपको सोल्यूशन फाइंड करना है तो तीनों केस करेंगे हम, ठीक है। तो तीनों केस सब इजी होगा एंड आई थिंक दिस प्रोसीड्योर इज वेरी इजी। देखो आप सिंप्लेक्स अप्लाई ना करके इससे बहुत इजीली प्रॉब्लम को सोच सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x1 प्लस x2 इस जो प्रॉब्लम आया इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो सपोज 44 जो है x1 प्लस x2 तो x2 एंड x3 ऐसे ले लो, ठीक है, x2 एंड x3। देन यहाँ पर आएगा x1 सॉरी x1 नहीं, यहाँ पर x2 आएगा आई थिंक, x1 हाँ सॉरी x1 एंड x3। तो ये x1 एंड x3, तो यहाँ पर आएगा x1 दिस इक्वल टू 48 सपोज यहाँ पर आएगा तो ये आ जाएगा 44 0 एंड 0 44 एंड यहाँ पर आएगा 48 0 एंड यहाँ पर आएगा 24। तो सपोज ऐसे 24 आएगा यहाँ पर एंड ये दोनों लेस इक्वल टू टाइप है, तो ये आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन रीजियन, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट का वैल्यू भी आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस दोनों को क्या आएगा -x3 इक्वल टू माइनस आपके पास 4 दैट इज x3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4
एंड x3 इक्वल टू 4 आएगा तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 40। तो यहाँ पर टोटल सॉल्यूशंस क्या है, x1 इक्वल टू 40, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 4। एंड इन दिस केस z का वैल्यू क्या आएगा, z क्या था, z का वैल्यू था 3 2 5। सो z का वैल्यू था 3 2 एंड 5, ठीक है। तो z का वैल्यू एट दिस पॉइंट क्या आएगा 40 0 एंड 4 पॉइंट में यहाँ पर आ जाएगा जो वो आ जाएगा 120 प्लस 0 प्लस 20, ये आ जाएगा 140, ठीक है। तो ये एक केस आ गया 0, जो वैल्यू आ गया 140 एंड ये केस आ गया z का वैल्यू 92, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास z के ही वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो x1 को ले लेंगे क्या, नॉन बेसिक वेरिएबल, तो x1 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 2x2 प्लस x3 लेस इक्वल टू 44, एक इक्वेशन आएगा 2x2 प्लस x3 लेस इक्वल टू 44 आ जाएगा। देन x2 एंड x1 2x3 लेस इक्वल टू 48 2x3 एंड नेक्स्ट आएगा 2x3 लेस इक्वल टू 48 दैट इज x3 लेस इक्वल टू 24 एंड 4x3 लेस इक्वल टू 52 दैट इज x3 लेस इक्वल टू आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x3 लेस इक्वल टू 14 एंड 24 एंड टू x3 लेस इक्वल टू 48 है ना, या सही सही, ठीक है। देखो तो ये आ जाएगा नाउ ये एंड ये कोई एक दो यहाँ पर लेके आप सॉल्व कर सकते हो। हम इस दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा x3 डेसिकल टू 13 ही होगा, तो इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये एंड ये। तो देखो यहाँ पर ग्राफ मतलब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो x2 एंड x3 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर सपोज ले लेते हैं 22 0 एंड 0 44 ये एक सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला एंड देन आ जाएगा x3 लेस इक्वल टू 13। सो x3 लेस इक्वल टू 13 सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है आपके पास 13, तो ये जो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा ये ना, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो x3 का वैल्यू तो 13 है, ठीक है, एंड x2 का वैल्यू क्या होगा 13, यहाँ पर आप लगाओगे तो आई थिंक क्या आ जाएगा, क्या आएगा x2 का वैल्यू, ओ सॉरी x3 का वैल्यू ले लिया मैंने, x2 का वैल्यू सॉरी ये तो x2 होगा, 4x2 था, ठीक है 4x2 था, तो x2 का वैल्यू आ जाएगा लेस इक्वल टू 13। तो x2 का वैल्यू मीन्स ये लाइन ऐसा नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया थोड़ा बहुत, x2 मीन्स ये वाला x2 मीन्स 13, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो रीजन होगा ऐसा, ये x2 इक्वल टू 13 लाइन। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा x2 इक्वल टू 13 एंड x3 का जो वैल्यू होगा x3 का वैल्यू 26, x3 का वैल्यू क्या होगा, x3 का आपके पास वैल्यू हो जाएगा 18 आई थिंक, देखो आप एक बार 18। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो जाएगा 13 एंड 18, ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 एंड x3 का वैल्यू क्या होगा, x1 x2 एंड x3 का वैल्यू x1 इक्वल टू तो 0 ले लिया एंड x2 इक्वल टू देखो आप एक बार इस पॉइंट को ले लेंगे तो 13 एंड 18 ये एक पॉइंट आ जाएगा एंड x1 इक्वल टू 0, इस पॉइंट को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 44, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, नहीं 44 नहीं 0 0, ये क्या होगा आपके पास x2 0 नहीं होगा, जस्ट ए सेकेंड, 13 एंड x1 इक्वल टू 0, यहाँ पर इस पॉइंट को लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओह सॉरी 0 24 x2 x3, यस आई थिंक ये एक पॉइंट तो आएगा, जस्ट ए सेकेंड। तो आप ये एक बार देख लो, ठीक है, इस पॉइंट में सॉल्यूशन z का वैल्यू का आएगा, ये एक बार देख लो, ठीक है। इस पॉइंट में जो z का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा आपके पास 0 प्लस 26 प्लस 90, क्योंकि z का जो वैल्यू था वो था 2x1 प्लस 3x1 3 आई थिंक 3 to 5, तो जो वैल्यू था वो था 3 2 एंड 5x3, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा आप एक बार देख लो, तो 90 प्लस 26 प्लस 0 ये आ जाएगा आपके पास 116, ठीक है। तो और जो आई थिंक वैल्यू आएगा 16 तो नहीं होगा x3 का वैल्यू, x3 का वैल्यू एक बार ये जो पॉइंट आया था यहाँ पर आपके पास आप देख लो, जो आया था 44 एंड 0 x2 x3 एंड x3 का वैल्यू x1 का वैल्यू भी 0 लिया था। तो इन दिस केस ये एक पॉइंट आएगा क्योंकि ये x2 एंड x3 का रेस्पेक्ट में ग्राफ है एंड x1 को हम 0 ही चूज किए फर्स्ट टाइम नॉन बेसिक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस केस में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2x2, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 88 वैल्यू आएगा, ठीक है, जेड का वैल्यू। तो देखो आप 88 116 यहाँ पर आया 140 आया है एंड यहाँ पर एक आया है 92। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 140, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इजी कंसेप्ट एंड वेरी इजी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग द मेथड और विदाउट अप्लाइंग द सिंप्लेक्स मेथड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। आप देख सकते हो एलपीयू के फास्ट में जो होता है, ठीक है, कोई एक बुक उठा कर देख सकते हो कि जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से मैंने बेसिक एंड नॉन बेसिक चूज करके ये एक सोल्यूशन यहाँ पर किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो इफ दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू देन ऑब्वियसली गिव लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।